بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ، ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع وہی ہے جو سوشل میڈیا پہ خاصا گرم ہے، دعا زہرا کیس، اور صبح اس کیس میں بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور ایک خاص بریکنگ نیوز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ دعا زہرا کے والدین کے جو وکیل ہیں جبران ناصر ایڈوکیٹ، انہوں نے 2 جولائی کو ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے کیس میں کیا نیا موقف اختیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور کیا یہ کیس کراچی سے لاہور شفٹ ہونے والا ہے، اور کیا دعا زہرا کے شوہر ظہیر کے خلاف لاہور میں بھی کوئی ایف آئی آر درج کرانے کی کوششیں کی جائیں گی؟ یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ یہ بنیادی 3 بریکنگ نیوز ہیں جو آپ کو میں اس پروگرام میں دوں گا، اور امید ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو دیکھیں گے، پسند کریں گے، جس میں آپ کو قانونی حوالے سے بہت ساری کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق وہ تمام معلومات فراہم کر سکوں جس سے آپ کو اس کیس کو سمجھنے میں اور ملکی قانون کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کیس کی ابتدا کچھ اس انداز میں کی جائے کہ میں آپ کے سامنے دعا زہرا اور ظہیر کا جو نکاح ہوا اس کی ایک شارٹ سی کلپ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کے علاوہ جو ان کے درمیان نکاح ہوا ہے، نکاح نامہ، اس کا جو میرے پاس ایک عکس ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکوں، اور ایف آئی آر جو الفلاح تھانہ کراچی میں درج کرائی گئی ہے انڈر سیکشن 364A اور سیکشن 3I آف پریونشن آف ہیومن ٹریفیکنگ ایکٹ 2018، یہ دونوں کے جو حوالے سے ایف آئی آر نمبر 159 آف 2022 ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کا بھی عکس پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں ایک بار میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلے آپ یہ چیزیں دیکھیے اور پھر میں آپ کو مزید اس کے اوپر آگاہ کرتا ہوں۔ سید مہدی علی کاظمی، آپ کا نکاح منیر احمد کے بیٹے ظہیر احمد کے ساتھ 50,000 روپے اکمل شریک تمام شریکوں کے سامنے آپ کا نکاح ظہیر احمد کے ساتھ پڑھا دیا۔ آپ کو قبول ہے بیٹا؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ ظہیر احمد اور منیر احمد، آپ کا نکاح سید مہدی علی کاظمی کی بیٹی دعا زہرا کاظمی کے ساتھ 50,000 روپے اکمل شریک تمام شریکوں کے سامنے آپ کا نکاح دعا زہرا کاظمی کے ساتھ پڑھا دیا۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول۔ جی ناظرین، تو آپ نے جیسے دیکھا کہ دعا زہرا اور ظہیر کا جو نکاح ہوا ہے اس میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہوا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دعا زہرا اور ظہیر کا جو نکاح ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہوا ہے، اس کا ایک نکاح فارم بھی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ مہدی علی کاظمی جو دعا زہرا کے والد ہیں انہوں نے تھانہ الفلاح میں ایک ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے 364A PPC اور 3I پریونشن آف ہیومن ٹریفیکنگ ایکٹ 2018۔ اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو اہل تشیع کا ایک جو موقف ہے، میں محترم سید جواد نقوی صاحب کا یہاں پہ 2 دن قبل ایک جو بیان انہوں نے لاہور میں دیا ہے ایک اپنے خطاب کے دوران، میں چاہتا ہوں کہ اس بیان کو بھی آپ سن لیجئے تاکہ اس معاملے کو مزید ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ اسی طرح کی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایک کیس ہے نا، لڑکی گھر سے بھاگی کراچی کی، کئی لڑکیاں ایک ساتھ بھاگیں لیکن ایک کا ایشو زیادہ بڑھ گیا چونکہ اس کے والدین نے زیادہ مسئلے کو چھیڑا اور پیگیری کی زیادہ انہوں نے۔ خوب کرنی چاہیے، والدین ہیں ان کو نفسیاتی طور پر ہونا چاہیے، اگر سوجھ بوجھ والے ہوتے تو نہ کرتے، کم از کم رہی کی عزت بچا لیتے، لیکن وہ جو ممتا ہے یا جو اولاد کے ساتھ محبت ہے وہ غالب آئی، اور انہوں نے مسئلے کو بہت شروع ہی میڈیا سے کیا، انہوں نے بچی کی گمشدگی کا اعلان سوشل میڈیا سے کیا، وہیں سے پھر بات آگے دور تک چلی گئی اور ابھی تک ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، سب نے کر دیا، لیکن پھر بھی
कोशिश जारी है उन वालदैन की कि ये हमें मिले। कोर्ट ने खूब इस सारे मसले में, मैंने पहले भी कहा था कि बदतरीन काम अदलिया ने किया और पुलिस ने किया है कि ये ख़ानदानों की तबाही का सिग्नल इन्होंने दिया है कि बच्चे घरों से बेशक भागें, जब भाग जाएं, किसी भी ख़ानदान का, बाइज़्ज़त ख़ानदान का कोई बच्चा बच्ची भागता है, बच्चों की नहीं बात करते, बच्चियों की ज़्यादा, पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ देगी, वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ भाग जाए, जहाँ निकाह करे ना करे निकाह, चूँकि वो 18 साल की है लिहाजा वो भाग सकती है घर में, और अदालत में जाके बयान दे दे, अदालत ने माँ बाप को जुर्म जेल में डाल देना है। ये वो खबासत है जो इस मुल्क के अंदर हो रही है, और सारे पुलिस, अदलिया, मीडिया सब मिल के ये काम करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने जैसे सुना कि मोहतरम सैयद जवाद नकवी साहब ने इसको एक माशरे की बहुत बड़ी बुराई करार दिया कि लड़का लड़की का घर से भागकर शादी करना। लेकिन हमारा इस हवाले से जो कानून है वो इस शरई मामले में कुछ दूसरा अंदाज़ बयान रखता है और उसका जो नज़रिया है वो कोई दूसरा है। हमारे कानून में ये है कि अगर लड़की, सिंध के कानून में यह है कि अगर लड़की 18 साल की है तो वो अपनी मर्ज़ी से, मर्ज़ी व मंशा से बग़ैर वालिदैन की मौजूदगी और रज़ामंदी के शादी कर सकती है, उस पर कोई कदगन नहीं है। पंजाब में अगर लड़की 16 साल की है तो वो अपनी मर्ज़ी व मंशा से वालिदैन की मौजूदगी और रज़ामंदी के बग़ैर शादी कर सकती है, वो दुरुस्त है। अब ये पाकिस्तान के चूँकि सूबाई मामलात के कानून हैं, इसलिए दोनों सूबों में कानून में उम्र की हद अलग अलग है और वो कानून के मुताबिक दुरुस्त है। बज़ाहिर शरई तौर पे इसमें अहले हदीस मसलक और जो अहले तशय्यो का मसलक है वो ये है कि चाहे लड़की बालिग हो, चाहे वो 16 साल की हो, चाहे 18 साल की हो, दोनों सूरतों में बग़ैर वली के उसकी, यानी कि उसके वालिदैन या सरपरस्त की मौजूदगी और उसकी मर्ज़ी व मंशा के बग़ैर शादी नहीं हो सकती। मेरा इस प्रोग्राम में कतई कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं शरई और मसलकी हवाले से इस पर गुफ्तगू करूँ। मेरा सारा ज़ोर जो, या सारा गुफ्तगू का जो असूल होगा वो कानून की बुनियाद पे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक वाक़या हुआ, इसमें जो FIR दर्ज कराई गई सिंध में, कराची में, वो FIR ये कहती है कि अगर लड़की 14 साल से कम उम्र है तो चाहे वो अपनी रज़ामंदी से अगर किसी के साथ गई है तो इसको अगवा ही तस्वर किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं बड़ी दिलचस्प आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जिब्रान नासिर जो वकील हैं मेहदी अली कादमी दो ज़हरा के वालिद के, उनकी जो 2 जुलाई को ट्वीट आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस ट्वीट में उन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो एक दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब वो 364 के जो मौक़िफ़ है उसको उन्होंने प्रेस नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है कि गुज़िश्ता रोज़, यानी कि कल हफ्ते वाले दिन दुआ ज़हरा का सिंध महकमा सेहत की तरफ से तश्कील दिया गया 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है उसने दुआ ज़हरा को एग्ज़ामिन किया है। उसकी दांतों, हड्डियों, जबड़ों और उसके खून और उसकी बलूगत और उसके कद और वज़न के हिसाब से और उसके वालिदैन से गुफ्तगू और उनसे सवाल जवाब और लड़की से सवाल जवाब के बाद जो कुछ भी उन्होंने अख़ज़ किया है वो यकीनन उन्होंने अख़ज़ कर लिया है। और अख़ज़ करने के बाद उसकी रिपोर्ट वो आज सुबह जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद इस केस का मैं समझता हूं कि कराची में मुकम्मल तौर पे चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि लड़की की उम्र 14 साल से कम उम्र साबित होना मेरे तज्ज़िये के मुताबिक मुमकिन नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये तो कल जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा, लेकिन मैं अपने तज्ज़िये की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जो मैंने कल पोस्चर और जेस्चर दुआ ज़हरा के वालिदैन का मेडिकल बोर्ड के दरमियान जो मेडिकल हो रहा था उस एग्ज़ामिन उसके दौरान जो देखा और जिब्रान नासिर साहब को जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने महसूस किया कि उन्होंने अब इस 14 साल की उम्र की हद के ऊपर जो 364A है उससे बैकफुट होने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और मुमकिन है कि आज जब ये रिपोर्ट पेश हो तो ये तयन हो जाएगा कि इस पर 364A नहीं लगती। अब इस पर कौन सी नई दफ़ा लग सकती है उस पर मैं आगे ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे कबल कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वज़ीर निस्वां
तरक्की निस्वां सिंध शहला रज़ा साहबा की इस हवाले से गुफ्तगू सुन लें कि वो इस मेडिकल बोर्ड और दुआ ज़हरा और जो दस्तावेज़ात हैं नादरा की मेहदी अली काज़मी साहब के पास, उनके हवाले से वो क्या कहती हैं, वो सुनिए, फिर मज़ीद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुआ ज़हरा भी पंजाब से उसको लेके चल पड़े हैं और कल उसका बोर्ड बिठे जो है उसके सामने पेश होगी। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बोर्ड ये बैठा है और जो कि उसके वालिदैन के जो पेपर्स हैं उनके भी चेक करेगा, बच्ची का भी एग्ज़ामिनेशन होगा। और बस ये है कि हमें ये देखना है कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा, क्योंकि जब वालिदैन के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसूलन तो मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। और हमने अपने इदारे जो है ना, अगर ये बातें सियासतदान करते कि नहीं जी नादरा के पेपर्स की कोई अहमियत नहीं, ये सिस्टम कराओ, तो सियासतदानों पे तो अब तक इल्ज़ाम लग चुका होता कि ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को। जी, तो नाज़रीन, आपने वज़ीर सिंध शहला रज़ा साहबा की गुफ्तगू सुनी। अब इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि दुआ ज़हरा को जो सिंध हाई कोर्ट में मेहदी अली काज़मी की रिट पिटीशन के ऊपर तलब किया गया था और वहाँ दुआ ज़हरा ने दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने कलमा पढ़ के हल्फ दिया और फिर उसने बयान दिया कि मेरी उम्र 17-18 साल है और मेरे वालिदैन इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं कम उम्र नहीं हूँ, मैं आकिल और बालिग हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से जाके ज़हीर के साथ शादी की है और मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। इस बयान के बाद सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को पुलिस को हुक्म दिया कि वो दुआ ज़हरा का मेडिकल कराएं, क्योंकि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उन्होंने वहाँ दस्तावेज़ात पेश की थी, नादरा की बर्थ सर्टिफिकेट, बेफाम, पासपोर्ट की कापी और अपने निकाहनामे की कापी, कि उनकी शादी 2005 में हुई है और उनकी ये बेटी 2008 में पैदा हुई है नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक। चूँकि ये कंट्रोवर्सी आ गई और इस कंट्रोवर्सी को चूँकि बाप और बेटी के दरमियान ये कंट्रोवर्सी आ गई, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने इसके रिज़ॉल्व करने के लिए मेडिकल का हुक्म दिया, जिस पर सिंध पुलिस ने दुआ ज़हरा का मेडिकल करवाया 7 जून को और उस मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो फिर 8 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से ज़ायद 17 साल के लगभग बयान की गई और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो चाहे तो वालिदैन के साथ चली जाए, चाहे तो वो अपने शौहर के साथ चली जाए। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि वालिदैन ने दुआ ज़हरा से मुलाकात करने की मुतअद्दिद बार इस्तदा की और दुआ ज़हरा ने इस मामले पर कतई अपनी जो है रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की, जिस पर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़ुसूसी तौर पे दुआ ज़हरा को समझा कर और उसको हदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ चैम्बर में मुलाकात करे और 10 मिनट की मुलाकात का टाइम दिया गया, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन बाहर निकले। दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ चली गई। दुआ ज़हरा की वालदा और वालिद ये कहते रहे कि जैसा मेरी बेटी का दोबारा बयान ले लिया जाए वो हमारे साथ जाने को तैयार है। लेकिन बहुत दिलचस्प सूरत हाल ये कि दुआ ज़हरा ने बाहर निकल के कतई ये बयान नहीं दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, उस पर कोई दबाव है, उसको कोई अगवा किया गया है, उसको कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है या वगैरह वगैरह वगैरह। इससे सूरत हाल मज़ीद गंभीर हुई और इसके बाद सूरत हाल ये हुई कि मोहतरम जिब्रान नासिर साहब को वकील किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की। उस CPLA पे फिर समाअत हुई और समाअत होने के बाद फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि आप अगर मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करना चाहते हैं तो उसमें कहीं कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन तो नहीं है सिंध हाई कोर्ट की, और अगर है भी तो वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं होगी, आप चाहें तो इस मेडिकल को चैलेंज करें। लेकिन इस मेडिकल को उस तरह चैलेंज नहीं किया गया, चूँकि मेहदी अली काज़मी साहब ने नया मेडिकल बोर्ड, उस एक सिंगल रुकनी मेडिकल बोर्ड पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और सेक्रेटरी हेल्थ को एक दरख्वास्त दी थी कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। फिर इस हवाले से मेहदी अली काज़मी की तरफ से जिब्रान नासिर ने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और फिर ट्रायल कोर्ट ने भी आर्डर पास कर दिया कि एक
بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جس کے بعد محکمہ صحت سندھ نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس میں سروسز ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل اور ڈاؤ ہاسپٹل کے جو مستند اور سینئر ترین ڈاکٹرز ہیں ان کو شامل کیا اور ان کو اس کی ذمہ داری سونپی کہ وہ دعا زہرا کی عمر کا تعین کریں، جس کے بعد گزشتہ روز یہ تعین کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی ایگزامینیشن رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بورڈ کی سربراہ ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتائی جائے گی اور یہ سیل کر کے یہ ٹرائل کورٹ کو سوموار والے دن پیش کی جائے گی، اس کے بعد ٹرائل کورٹ جو چاہے اس کے اوپر اپنا آرڈر جاری کرے۔ تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ سوموار ٹرائل کورٹ میں رپورٹ پیش ہونے سے قبل تک کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ دعا زہرا کی عمر 14 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، کتنی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن میں پھر آپ سے وہی بریکنگ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ جبران ناصر نے جو ٹویٹ کی ہے، میں آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں اس حوالے سے آگاہ کروں گا کہ اب کیسے موقف تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ وہ تمام چیزیں دیکھ لیں، دعا زہرا کا جو بیان تھا سندھ ہائی کورٹ میں اس کا عکس دیکھ لیں، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا عکس بھی دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا عکس بھی دیکھ لیں، اور آپ یہاں پہ وہ جو میڈیکل بورڈ کی سربراہ ہیں ڈاکٹر، آپ ان کا موقف بھی سن لیں کہ انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کیا کہا ہے اور دعا زہرا ہسپتال کیسے پہنچی، وہاں پہ اس کے والدین کس طرح تھے، آپ وہ مناظر بھی دیکھ لیں، پھر مزید میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ کے لیے جو بھی فارمیلٹیز تھیں وہ ہم نے پوری کر لی ہیں۔ یہ نے بہت ایگزاسٹو اس کو ایگزامن کیا ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے۔ ہمیں اپنی جو بھی اوپینین دیں گے فائنل وہ کورٹ میں پرسوں صبح جمع ہوگی، بس دیٹ از سیکرٹ۔ سوری میں اس مالے کا کوئی جواب نہیں دوں گا، نہیں ہم ایسا کچھ نہیں بتائیں گے، جو کچھ بھی ہے منڈے کی مارننگ میں کورٹ میں جائے گی، دیٹس اٹ۔ نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، سوری۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ سارے دستاویزات جو ہیں قانونی وہ آپ نے اپنے اسکرین پہ ملاحظہ کی، اب میں آپ سے ایک اور ایکسکلوسیو گفتگو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا زہرا نے اپنے والدین سے صرف سندھ ہائی کورٹ میں ہی نہیں ملاقات سے انکار کیا، بلکہ اس نے 6 اور 7 جون کو شیلٹر ہوم کراچی میں بھی اپنی والد والدہ سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بھی ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، ایک انٹرویو ہے جو ایک سماجی بہبود کی تنظیم ہے، NGO ہیں، ان کی ایک سربراہ ہیں نصرت شیری صاحبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بتایا، انکشاف کیا کہ وہ اور وزیر سندھ ترقی نسواں شہلا رضا شیلٹر ہوم میں دعا زہرا کو ملنے گئی اور انہوں نے اس کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے والدین سے ایک بار ملاقات کر لے، لیکن اس نے مسلسل انکار کیا، اور جب انہوں نے اس کو تھوڑا سا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو نصرت شیری کا کہنا ہے کہ دعا زہرا نے انتہائی زور سے پیر پٹخا اور شدید لہجے میں اس نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کریں گے جو انٹرویو ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سے بریکنگ نیوز شیئر کرتا ہوں۔ بھائی یہ سب کیا بات ہے؟ نصرت انہوں نے بالکل کلیئر منع کیا دعا نے کہ میں اپنی ماں باپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ ہاں یہ کہا اس نے، اور لیکن آپ سوچیں ماں باپ سے زیادہ کوئی ہوتا ہے، اور 14 سال کی بچی، اور نکاح نامے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹریپ ہوئی ہے وہ؟ دیکھیں کیونکہ آپ تو اتنے انگنت کیسز دیکھ رہی ہوتی ہیں دن بھر میں۔ اب آپ دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیں، میں نے تو دونوں سے ملاقات کی، نمرہ کاظمی اور دعا زہرا، دونوں کے جو سوالات میں نے کیے، میں نے پوچھا اور پڑھا کتنا ہے، ایک نے کہا 5ویں، ایک نے کہا 9ویں۔
आगे पढ़ने का शौक है, मेरा दिल था कि मैं इनको पढ़ाई में लगवाऊं, तो उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने का शौक है। अब ये बात है। और फिर ये कि तुम जो हो ये बताओ कि किस तरह तुम वहां तक, नहीं मैं जी नाजरीन, ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि दुआ ज़हरा ने किस तरह अपने वालिदैन से मिलने से इनकार किया। अब मैं आपके साथ वो ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि अब इस फैसले का जो ये जंग है, ये फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और आज इसके हवाले से तयन होना है। लेकिन जो बात मैंने आपसे इब्तदा में कही थी कि जिब्रान नासिर साहब की ट्वीट से ये वाज़े हो रहा है कि दुआ ज़हरा की उम्र शायद 14 साल नहीं है, और इस बात का इदराक और एहसास शायद वालिदैन को है। इसीलिए जिब्रान नासिर साहब ने 2 जुलाई को जो ट्वीट की, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे कि आप देखिए कि उन्होंने 2 जुलाई को क्या ट्वीट की उन्होंने। उसके बाद में आपको फिर जो उन्होंने केस के हवाले से एक नई डेवलपमेंट की बात की है वो फिर आपसे मैं शेयर करता हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि जिब्रान नासिर साहब ने ये बात कह दी कि पंजाब में 16 साल से कम उम्र लड़की से शादी करने के जुर्म में पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 361, 363 और 375 का इतलाक़ होगा। ये वो ट्वीट है जो 2 जुलाई को की गई है, और ये उस दिन की गई है जिस दिन दुआ ज़हरा का 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया है। 364A बड़ी वाज़ेह है कि वो उन लड़कियों पर लगती है जो अंडर 14 होती हैं, और 361 उन लड़कियों पे लगती है जो अंडर 16 होती हैं। तो जनाब, अगर उसके ऊपर 361, 363 और 375 का इतलाक़ होना है तो अब वो कहाँ होगा इतलाक़? पहले आप ये तीनों सेक्शंस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें कि ये तीनों सेक्शंस हैं क्या, फिर मैं मज़ीद आपसे इस पर कानूनी गुफ्तगू करता हूँ। तो जी नाज़रीन, ये आपने देखी ये सेक्शंस 361 जिसके तहत 16 साल से कम उम्र लड़की, 363 और ये 375 16 साल से कम उम्र लड़कियों पर इतलाक़ होता है। कम उम्र होगी, चाहे उसने अपनी रज़ा मंशा से ये अमल किया हो, तो उन पर लड़के पर रेप का ही कानून लागू होगा। लेकिन जनाब, इसके अंदर जो 5 शराइत हैं 375 की, वो जब तक मीट नहीं करेंगी, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त तो यही है कि अंडर 14 एज हो। उसके बाद बाकी हैं कि वो रज़ामंदी से लाया हो, लड़की की रज़ामंदी ना हो, उस पर जबर करके किया गया हो, उसको जान से मार के, उसको धमका के, उसको कोई ऐसा सिलसिला करके उसके साथ किया गया हो, तो वो बाकी 4 शराइत तो शायद पूरी ना हो सकती हों, लेकिन एक शर्त है जिसको इतलाक़ हो। तो ये चूँकि शादी लाहौर में हुई है, तो ये केस 361, 363 और 375 का ये लाहौर में ही किया जाएगा। और चूँकि ये शादी हुई है तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये शादी अंडर एज है, 16 ईयर्स से कम में है। जब ये शादी नल एंड वाइड होगी तो सेक्शन 361, 363 और 375 का इतलाक़ होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज इस मामले का मंतकी अंजाम हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि अब अगर नया फेज़ लिटिगेशन का पंजाब में शुरू हुआ तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कानून, अदलिया और हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैंने बतौर तालिब इल्म कानून इस मुकदमे को पढ़ने समझने की कोशिश की, और जिस हद तक मैं समझ पाया मैंने वो कानूनी निकात आपके सामने रख दिए हैं। मैंने कतई ये फ़ैसला नहीं किया कि लड़की ने नाजायज़ किया या जायज़ किया। मैंने कतई ये फ़ैसला नहीं किया कि लड़की के वालिदैन जायज़ कर रहे हैं कि नाजायज़ कर रहे हैं। मैंने कतई ये फ़ैसला नहीं किया कि अदालत दुरुस्त कर रही है या गलत कर रही है। मैंने किसी की डोमेन में जाके फ़ैसला नहीं किया। ये फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप ये सारे हक़ाइक़, शवाहिद, दस्तावेज़ात, ये तमाम मालूमात देखने के बाद ख़ुद फ़ैसला कर लें कि इस मामले में क्या होना चाहिए था,
کیا ہوا ہے اور مستقبل میں کیا ہونا چاہیے.